السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں اس بار حکومت اور اپوزیشن کے مابین شدید لڑائی کا امکان ہے۔ اجلاس کے آغاز سے پہلے ہی ایسا ہی ایک مسئلہ منظر عام پر آیا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں کئی صحافیوں، سیاستدانوں اور دیگر لوگوں کے فون پیگاسس سافٹ ویئر کے استعمال سے ہیک کیے گئے تھے۔ ان انکشاف کے حوالے سے پیر کو یعنی آج پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس موضوع پر بحث کا مطالبہ اپوزیشن جماعتوں نے دونوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کیا ہے اور ایک تحریک پیش کر دی گئی ہے۔ اس موضوع پر بحث کا مطالبہ سی پی آئی کے رہنما بنائے وشنم، آر جے ڈی ممبر پارلیمنٹ منوج جھا، عام آدمی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ سمیت راجیہ سبھا میں کئی اراکین پارلیمنٹ نے کیا ہے۔ آئندہ چند گھنٹے یا چند دن دنیا بھر بشمول ہندوستان میں سیاسی دھماکے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں کہ دنیا بھر میں کئی اہم شخصیتوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے ہیں اور ان کے فون کو ہیک کرتے ہوئے تمام تر مواد حاصل کر لیا گیا ہے۔ جملہ 10 ممالک میں یہ ٹیپنگ ہوئی ہے، جبکہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی تقریباً ہر اہم ترین شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کے فون ٹیپ ہوئے ہیں۔ ان فونز کا مکمل مواد حاصل کر لیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ ایک جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے، جو اسرائیلی سافٹ ویئر ہے۔ اس اسرائیلی سافٹ ویئر کے استعمال کے ذریعے ہندوستان میں بھی سپریم کورٹ ججز، اپوزیشن قائدین، خود مودی حکومت کے وزراء، قانونی ماہرین، بڑے تاجرین، سرکاری عہدیداروں، سائنسدانوں، حقوق انسانی کارکنوں کے علاوہ ملک کے سرکردہ صحافیوں کے فون ٹیپ کیے گئے ہیں اور ان کا سارا مواد اور ڈاٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ پیگاسس سافٹ ویئر اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کی جانب سے دنیا بھر میں فروخت کی جاتی ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ سافٹ ویئر صرف خواہش مند حکومتوں کو ہی فروخت کیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جملہ 36 ممالک نے یہ سافٹ ویئر خریدا ہے۔ ہندوستان میں میڈیا گروپ دی وائر نے اپنے 16 میڈیا پارٹنرز کے ساتھ تحقیقات کے ذریعے یہ انکشاف کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جن افراد کے فون ٹیپ کیے گئے ہیں ان میں مودی حکومت کے 2 وزراء، کم از کم 4 اہم اپوزیشن قائدین، 1 سپریم کورٹ جج، RSS کے عہدیدار، 40 معروف و سرکردہ صحافی اور کئی اہم اور بڑے تاجرین بھی شامل ہیں۔ جو سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے پیرس سے کام کرنے والے ایک میڈیا ادارے کو ملے تھے، جس نے دنیا بھر میں کئی صحافتی اداروں کے ساتھ اسے شیئر کیا ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے چیف منسٹر امریندر سنگھ کی سخت مخالفت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نوجوت سنگھ سدھو کو پارٹی کے پنجاب یونٹ کا صدر مقرر کیا ہے۔ گاندھی نے اسمبلی انتخابات کا سامنا کرنے والی ریاست میں سدھو سے تعاون کے لیے 4 کارگزار صدور کا بھی تقرر کیا ہے۔ ممبئی میں موسم میں اچانک آئی تبدیلی کی وجہ سے گزشتہ رات کے بعد انتہائی تیز اور تباہ کن بارش نے 26 جولائی 2005 کی تلخ یادیں تازہ کر دی۔ رات 12 بجے سے 3 بجے تک محض 3 گھنٹوں میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جو غیر معمولی ہے۔ صبح تک 307 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ بارش کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر مقامات پر 1 فٹ سے بھی زیادہ پانی بھر گیا۔ رات میں کئی گھنٹوں تک ہوئی یہ بارش شہر بھر میں 24 سے زائد جانوں کے اتلاف کا سبب بنی ہے، جبکہ بڑی تعداد میں شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ ماہرین نے بارش کی شدت کا موازنہ 26 جولائی 2005 کی اس بارش سے کیا ہے جس نے پورے ممبئی کو جھیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ قندھار میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران جاں بحق ہوئے جوان سال فوٹوگرافر صحافی دانش صدیقی کا جسد خاکی اتوار کو دہلی پہنچ گیا۔ انہیں ان کے مادر علمی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں سپرد خاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رات 10 بجے ان کی تدفین عمل میں آئی۔ واضح ہے کہ دانش صدیقی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہی گریجویشن کیا تھا اور یہیں سے انہوں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں جامعہ کے قبرستان میں دفن کرنے کی درخواست اہل خانہ کی طرف سے کی گئی تھی، جسے یونیورسٹی انتظامیہ نے قبول کر لیا۔ جامعہ کا یہ قبرستان خصوصی طور پر اس کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے مختص ہے۔ یہاں دانش کے والد شعبہ تعلیم کے ڈین رہ چکے ہیں۔ دانش کی تدفین میں جامعہ کے موجودہ اور سابق طلباء کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے تیاریوں کو تیز کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے برہمن ووٹرز تک پہنچنے کے لیے ایودھیا سے ایک مہم شروع کرنے کا اعلان کیا اور برہمن طبقے کو یقین دلایا کہ اگر ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کے مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مایاوتی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ برہمن طبقے کے ارکان بھارتیہ جنتا پارٹی سے گمراہ نہیں ہوں گے اور آنے والے اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ دلت لیڈر اور سابق چیف منسٹر نے کہا کہ BSP جنرل سیکرٹری ستیش چندر مشرا کی قیادت میں 23 جولائی کو ایودھیا سے ایک مہم شروع ہوگی تاکہ برہمنوں کو بیدار کیا جا سکے۔ برہمنوں کو یقین دلایا جائے گا کہ BSP حکومت میں ان کے مفادات محفوظ رہیں گے۔ BJP نے اس پر جوابی وار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ BSP سربراہ اسمبلی انتخابات سے پہلے برہمنوں کو یاد کر رہی ہے اور موقع پرستی کی سیاست کر رہی ہے۔
मुल्क में हुक्मरान बीजेपी ने कहा है कि चंद लोग मुल्क में उलझन और अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये अफरा तफरी पैदा करने के लिए एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर यकजहती के साथ काम कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि एक वेबसाइट न्यूज़ अपने आप को मीडिया हाउस के तौर पर पेश करते हुए बैरूनी ममालिक से मुश्तबा तरीके से करोड़ों रुपए वसूल कर रही है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के निज़ाम को नाकाम के तौर पर पेश किया जा सके और चंद बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान की नाकामी का प्रोपेगेंडा किया जा सके। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि ये न्यूज़ वेबसाइट हिंदुस्तान को बदनाम कर रही है। इस वेबसाइट को बैरून मुल्क से माली इआनत मिलती है। अरब मुल्क ओमान ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज मुकम्मल लॉकडाउन में 24 जुलाई तक तोसी कर दी है, जिसके दौरान दिन के औकात में तमाम कारोबारी सरगर्मियों और लोगों और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुकम्मल लॉकडाउन ईद की छुट्टियों में भी नाफिज रहेगा। खीमों के शहर मीना की फिजाओं में इतवार को बारगाह रब्बुल इज्जत में चंद खुशनसीब मुसलमानों की सिसकियां और दुआएं गूंजती रही। तलबिया की गूंज में 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज हो गया है। मुसलसिल दूसरे साल कोरोना वायरस वबा की वजह से हज महदूद पैमाने पर अदा किया जा रहा है। इस साल सिर्फ 60,000 मुंतखब आज़मीन हज मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी की सआदत हासिल होगी, जो सऊदी शहरी हैं या मुमलिकत में रहने वाले वो अफराद हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मुल्कों से है। ये मुसलमान इतवार की शाम वादी मीना में क़याम के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां आज हज का रुकन आज़िम वक़ूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। अरफात के मैदान में क़याम के साथ ही अमलन हज मुकम्मल हो जाता है। आज़मीन हज के साथ साथ आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि वबा का जल्द खात्मा हो, जिसकी वजह से लाखों मुसलमान तवील अरसे से हज व उम्रे की सआदत से महरूम हो रहे हैं। वक़ूफ़ अरफात के बाद मंगल को रम्मी जमार का रुकन अदा किया जाएगा और इसी दिन अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवर ज़ुबा किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने एक और नई स्कीम पर अमल करने का फैसला किया है। दर्जे फरीद तबक़ात यानी एससी की तरक्की के लिए तेलंगाना दलित बंधु के नाम से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस रियासत में एससी तबक़ात की तरक्की और बहबूदी के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले इस स्कीम को एक हल्का असेंबली में अमल में लाया जाएगा। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर हुजूराबाद से इस स्कीम का आगाज़ करने वाले हैं। दरअसल ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा माह अगस्त में अजला के दौरे करते हुए पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकीम करने और सरकारी स्कीमात की अमलावरी का शख्सी तौर पर जायजा लेंगे। टीआरएस ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के दौरों के दौरान कई अजला में तामीर किए गए कलेक्ट्रेट की इमारतों का इफ्तिताह भी अमल में लाया जाएगा। शहर हैदराबाद में ईद उल अज़हा के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार ने 12 सीनियर अहदेदारों को मुख्तलिफ इलाकों में मुतय्यन किया है। एडिशनल सीपी क्राइम शिका गोयल को साउथ जोन में चार मीनार और फलकनुमा डिवीजन्स की जिम्मेदारी दी गई है। अविनाश मोहंती जॉइंट सीपी डीडी को वेस्ट जोन में आसिफ नगर और गोशा महल की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह 12 अहदेदारों को मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी का जायजा लेने का मशवरा दिया गया है। एहतियाती तौर पर यह पुलिस बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने तमाम 12 अहदेदारों से कहा है कि वो 21 जुलाई की सुबह 6 था 22 जुलाई की सुबह 6 बजे तक मुतालिका इलाकों में रहें और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लें। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर हैदराबाद और अजला में जारी शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद के दो अहम तरीन ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1784 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है। इसी तरह हिमायत सागर की सतह फिलहाल 1762 फीट दर्ज की गई है, जबकि यहाँ मुकम्मल सतह 1763 फीट है। इसी तरह हिमायत सागर अब लिबरस होने के करीब पहुँच चुका है, जबकि उस्मान सागर में अभी पानी जमा होने की गुंजाइश है। वज़रे के हैदराबाद के अलावा अजला में भी गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के नतीजे में रियासत के कई ज़खायर आब और आबी प्रोजेक्ट्स में सतह बढ़ने लगी है और पानी का बहाव भी तेज़ हो गया है। इसी तरह उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबिरगीर इलाकों में बारिश के नतीजे में शहर के इन दो इंतहाई अहमियत के हामिल ज़खायर आब की सतह में भी बतदरीज इजाफा होने लगा है। महबूबाबाद ज़िले में गरीब शख्स के 2 लाख रुपए की करेंसी को चूहों की जानिब से काट खाने के वाक़े पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने ज़िला अहदेदारों से रिपोर्ट तलब की है। वो इस मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद गरीब तरकारी फरोश रेड्डैया नायक की मदद करना चाहते हैं। के टी रामाराव ने इस वाक़े के बारे में मीडिया में खबरों की इशाअत के बाद ज़िला कलेक्टर से रब्त कायम किया और इन्हें तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। अगर आपका गुजर KBR पार्क, LV प्रसाद या फिर बसवा ताराक्रम जंक्शन से हो रहा है तो यहाँ की चाय से ज़रूर इस्तेफादा कीजिए, क्योंकि डॉक्टर रविंद्रनाथ फाउंडेशन ने फ्री चाय काउंटर कायम किया है। यकीनन आप हैदराबादी जायकादार चाय के शौकीन होंगे। अगर इस बात का जवाब मुस्बित हो तो आप ज़रूर यहाँ की चाय का मज़ा चखें। ये तारीख़ी शहर हैदराबाद में अपनी नवियत का पहला फ्री चाय काउंटर है, जहाँ चाय के साथ चंद बिस्किट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। जैसे ही चाय का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में कड़क चाय का जिक्र आ जाता है। यहाँ की भी कड़क चाय से आप यकीनन इत्मीनान हासिल करेंगे। इस ज़िमन में जब रविंद्रनाथ फाउंडेशन अभिषेक नाथ बानी, जो
लू कैफे मैनेजिंग डायरेक्टर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कॉरपोरेट सर्विस ने बताया कि फाउंडेशन को इनके वालिद के नाम डॉक्टर रविंद्रनाथ के नाम से मानून किया गया, जो कि एक डेंटल सर्जन थे और इनका खालिस ताल्लुक तेलंगाना इलाके से था। फाउंडेशन के चैरिटी के कामों में सैनिटेशन और सैनिटेशन वर्कर्स पर भरपूर तवज्जो है। उन्होंने मजीद बताया कि कोरोना वायरस वबा के वक्त फाउंडेशन की जानिब से सैनिटेशन वर्कर्स में बड़े पैमाने पर पीपीई किट्स फराहम किए गए। जब इनसे फ्री चाय काउंटर कायम करने की वजह दरियाफ्त की गई तो उन्होंने बताया कि इन्हें इस बात का ख्याल आया कि जब 365 दिन तक काम किया जाता है तो हमें इस बात का ख्याल है कि हमें मुलाजमीन वर्कर्स को क्यों ना बुनियादी चीज़ चाय फराहम की जाए। इस ख्याल और अज़्म के साथ उन्होंने फ्री चाय काउंटर को कायम किया है। तब से चाय के शायकीन का गैर मामूली रद्दअमल मिल रहा है। तालीम को ज़ाफ़रानी रंग देने की कोशिशें मुल्क में नहीं हैं। मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी और इसकी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में तारीख़ असर नौ मरतब करने या फिर क़दीम इलाज के तरीक़ों को मुतारिफ़ करने के नाम पर तलबा को ऐसे मज़ामीन से मुतारिफ़ किया जा रहा है जिनका रास्त ताल्लुक़ हिंदुत्व ज़हनियत से है। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में गाय के पेशाब और गोबर के इस्तेमाल को सेहत के लिए मुफीद, हत्ता के कोरोना के इलाज के लिए भी फ़ायदेमंद ज़ाहिर किया गया है। हैरत की बात है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में तलबा को इसी तरह के मज़ामीन पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोरोना और कैंसर के अलावा दीगर अमराज के इलाज के लिए गाय के पेशाब, गोबर और दीगर अशिया के इस्तेमाल की हिमायत करने वालों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा को हिंदुस्तानी रिवायती इलाज से मुतालिक मालूमात के नाम पर मुतनाज़ा निसाब मुतारिफ़ करने की कोशिश की है। तलबा को जबरन मुतनाज़ा असबाख पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदुत्व प्रोपेगेंडे के मुताबिक मुख्तलिफ अमराज के लिए गाय का पेशाब फ़ायदेमंद है, हालांकि साइंसी तौर पर इस दावे की कोई तौसीक़ नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी के तलबा ने शिकायत की है कि तलबा को हिंदुस्तानी रिवायती मालूमात के निसाब को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बसूरत दीगर इन्हें इम्तिहान में कामयाब नहीं किया जाएगा।